So let us start with this topic. The name of this topic is function. In this section, we will study a special type of relation. So relation we have already discussed in the previous classes. So there is a special type of relation is called function. तो एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है, राइट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept in mathematics. We can visualize a function as a rule which produce new element out of some given elements, right? There are many terms such as map और मैपिंग यूज टू डिनोट अ फंक्शन. तो फंक्शन को हम लोग मैप भी बोलते हैं कई बार, एंड मैपिंग वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर द फंक्शन, राइट? So let me introduce the definition of the function to you. Look at the definition of the function here. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct order pairs in f have the same first element. Okay, so this is the definition. Now let me explain this definition, what they want to say in that definition to you. So let me explain this with the help of the example, then it is easy to understand the definition what is written here. So एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको. सपोज आई एम ड्राइंग एन एरो डायग्राम. ये ए है और ये बी है, राइट? सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. Look, and the element in set A is 1 2 3 4, right? And element in set B is 5 6 7 8, right? So now if I form the arrow diagram, 1 का रिलेशन है 5 के साथ, ठीक है? 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 3 का रिलेशन है 7 के साथ, and 4 relation is with 8, right? So in this case this 5 is called image of 1. तो 5 को क्या बोलेंगे? The element of set B is called as image. किसकी? set A के element की. हमने ये already we have discussed in the previous concept. So we can say that 5 is the image of 1. तो 5 किसकी इमेज है? 1 की, ठीक है? इसी तरह से 6 किसकी इमेज है? 6 is called as the image of 2, right? And this 7 is the image of 3, right? And this 8 we can say that 8 is the image of 4, right? अब सेट ए के एलिमेंट देखिए आप. सेट ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4. अब 1 की इमेज क्या है? 5. 2 की इमेज क्या है? 6. 3 की इमेज क्या है? 7. और 4 की इमेज क्या है? 8. इनकी कितनी इमेज आ रही है? हर एक एलिमेंट के, सेट ए के हर एक एलिमेंट की कितनी इमेज आ रही है? एक ही इमेज आ रही है. सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है. जैसे 1 2 3 4 की एक एक ही इमेज आ रही है, राइट? सो दिस इज अ फंक्शन. ये एक रिलेशन भी है एंड इट इज अ फंक्शन ऑल्सो. इफ यू कम अगेन टू द डेफिनेशन, अ रिलेशन एफ सेट ए का सेट बी से, जो मैंने यहां पे बनाया है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, राइट? ए फंक्शन is said to be a function. इस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? If every element of set A, तो set A के हर एक एलिमेंट 1 2 3 4, every element, right, has only one and one image in set B. set B के अंदर केवल एक और एक ही इमेज होगी. देखो 1 की कितनी इमेज है? 5, एक ही इमेज है. 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 7 की भी एक इमेज है, right? So this is, I hope that this definition is now little bit clear to you. So yes, it is a function. तो ये फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ये फंक्शन है, राइट? नाउ if you look at this second definition here, in the second definition it is given that, in other words, let me explain this second definition. In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B. तो non-empty set होगा A और non-empty set होगा B. इनका रिलेशन ही फंक्शन होता है. कब? such that the domain of f is A. the domain of f is A. f की जो डोमेन है वो A है, and no two distinct order pair in f have the same first element. Let me explain this thing with the help of the example to you.
then it is little bit clear to you. So let us take another example here. And no two distinct order pair in F have the same first element. इसको मैं अगर इसको फंक्शन है, इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, इस वाले फंक्शन को, तो क्या लिखूंगा? 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 2 का पेयर, द 2 पेयर विद 6, राइट, एंड 3 पेयर विद 7 एंड 4 पेयर विद 8, 4 का पेयर 8 के साथ, राइट। ये लिखने के बाद आप देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ। ऑर्डर पेयर एफ में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये चारों डिस्टिंक्ट जो पेयर हैं हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यस इट इज अ फंक्शन। अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं फर्स्ट एलिमेंट, सो यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन विद एन अनदर एग्जांपल। एक मैं एरो डायग्राम बनाता हूं, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। एक मैंने एरो डायग्राम बनाया यहाँ पे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे लिया 5 6 7, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। 1 को रिलेट किया, 1 का रिलेशन 5 के साथ है और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है, ठीक है। लेट मी राइट 8 ऑल्सो हियर। 2 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का रिलेशन 8 के साथ, राइट, एंड दिस 4 का रिलेशन भी 8 के साथ, राइट। नाउ इज दिस अ फंक्शन? ये क्या ये फंक्शन है? अगर हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन से देखें, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी, 1 की कितनी इमेज है? देखो 5 भी 1 से रिलेट करता है, 6 भी 1 से रिलेट करता है, सो 1 हैविंग 2 इमेजेस। तो 1 की कितनी इमेजेस हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक 5 है और एक 5 एंड 6। सो 1 की कितनी इमेज बन रही है? 2 इमेज बन रही है, 5 और 6 1 की 2 इमेज बन रही है, राइट। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। केवल एक और एक ही इमेज बननी चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स की, राइट। सो अब इसको सेकंड डेफिनेशन को समझते हैं इस एग्जांपल से। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड डेफिनेशन बाय दिस एग्जांपल। इसको अगर मैं लिखूं रोस्टर फॉर्म में, सो लेट मी राइट दिस फंक्शन इन द रोस्टर फॉर्म। सो 1 का रिलेशन किससे आएगा? 5 से। 1 का रिलेशन किससे आएगा? 6 से। 2 का रिलेशन किससे आएगा? 7 से। 3 का रिलेशन किससे आएगा? 8 से। 4 का रिलेशन किससे आएगा? 8 से, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेफिनेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं, कितने ऑर्डर पेयर हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर पेयर हैं। इसमें ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इस वाले ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 रिपीट हो गया है, राइट। तो ये इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, तो ये केवल एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कह रही थी? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आई होप दिस फंक्शन इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, what is function and what is not function. Okay, now look at this. If f is a function from a to b and a comma b belongs to f, then function a equals to b, where b is called the image of a under f and a is called the preimage of b under f. Okay, so let me explain this, what is the meaning of these lines here written. एक एग्जांपल देता हूं क्या बताना चाह रहे हैं इन लाइन में। एग्जाम्पल एरो डायग्राम से समझाता हूं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय एरो डायग्राम। ओके, suppose this is set A, this is set B, right? So it is given here, if you look at this, if f is a function from A to B, so A से B का function है, right? A comma B belongs to F. A comma B belongs to F means, what does it mean? Let me explain this thing to you. तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिए 1 2 3 4, राइट, और यहाँ पे एलिमेंट लिए A B C D, राइट।
So let us take the 3 elements only. Let us try to understand the different function. Look at this. So let me make the images. 1 की image है A, right? 2 की image है B, 3 की image है B, and the image of 4 is C. So the first thing is it a function? Is it following the definition of the function? 1 की image देखो, 1 की कितनी image बन रही है? A की image तो बन रही है. 2 की कितनी इमेज बन रही है? A की तो इमेज बन रही है, A की तो एरो जा रहा है B. 3 की कितनी इमेज बन रही है? 3 की A की तो इमेज बन रही है, A की तो एरो जा रहा है. 4 की कितनी इमेज बन रही है? A की तो इमेज बन रही है, लेकिन 2 और 3 की सेम इमेज बन रही है. तो सेम इमेज बन सकती है, बट 1 इमेज होनी चाहिए. इमेज तो एक ही है. 2 की कितनी इमेज है? A की है B. 3 की कितनी इमेज है? A की तो इमेज है B. So according to the definition, if only the set A element is having only one and one image, then it is a function. So yes, it is a function. ये फंक्शन है, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम हो सकती है, टू नहीं होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टू इमेज नहीं होनी चाहिए, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ. सो दिस इज अ फंक्शन, राइट? एंड इफ आई राइट दिस फंक्शन इन लाइक दिस, फंक्शन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं यहां पे, तो आप देखिए ये a कोमा b बिलोंग्स टू f का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1 कोमा a, ये एक जो पेयर होता है, 1 का रिलेशन a के साथ, 2 का रिलेशन b के साथ, 3 का रिलेशन b के साथ, और 4 का रिलेशन c के साथ. ठीक है, अब तो मैंने बता दिया एक इमेज से. एक सेकंड डेफिनेशन जो हमने देखी थी, यहां पे देखो, पेयर में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. 1 आ गया, 2 आ गया फर्स्ट एलिमेंट, 3 आया, 4 आया. क्या फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट हुआ है पेयर में? रिपीट नहीं हुआ है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यस इट इज अ फंक्शन. तो ये फंक्शन है. तो फर्स्ट थिंग इज दिस, इट इज अ फंक्शन. लुक एट दिस a कोमा b. a कोमा b का मतलब ये था 1 कोमा a, 2 कोमा b, 3 कोमा b, 4 कोमा c. f a इज इक्वल टू b. सो व्हाट इज f? f होगा यहां से, अगर मैं इसको रिलेट करूं लाइक दिस, सो दिस इज f, राइट? तो ये a यहां पे लिखा हुआ है, इसके अंदर a है, और इसके अंदर एलिमेंट b लिखे हुए हैं. और अगर ये यहां पे लिखते हैं f a इक्वल टू b, सो f a इक्वल टू f मतलब b के इक्वल है, तो दिस इज f a. ये एफ ए है, एफ ए इक्वल टू बी, राइट? दिस थिंग इज रिटर्न. एंड एफ ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल. तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आप एफ ए की जगह पे आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि ए 1 हो सकता है. ए की जगह पे आप 2 रख सकते हैं, ए की जगह पे आप 3 रख सकते हैं, ए की जगह पे आप 4 रख सकते हैं. एफ ए का मतलब मैं बता रहा हूं, एफ ए बी के इक्वल क्यों वहां पे ले रखा है. ठीक है, जब आप इसको 1 लेंगे, x को जब आप 1 रखेंगे a को, तो f कितना आएगा? a आएगा. तो इट्स इक्वल टू f1 पे 1 अगर लेंगे a की वैल्यू, तो f क्या आएगा? उस पे a आएगा, 2 पे b, c पे, 3 पे b, और 4 पे c. So this is the meaning of this line, where b is called, if you move forward in this line, if b is called as the image of a. तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई. अब b क्या होगा? b होगी इमेज ऑफ a. Let me explain this line to you. b is called image of a. तो ये कहना चाहते हैं b क्या है? ये जो लिखा हुआ है a b c. तो ये जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं a, b और c, ये क्या होंगे? ये होंगे इमेज, इज द इमेज. इनको बोलेंगे इमेज. ये क्या होंगे? इमेज होंगे. a b c सेकंड सेट के एलिमेंट जो b हम b से डिनोट किए हैं, वो क्या होंगे? वो इमेज होंगे. किसकी इमेज होंगे? a की. a क्या है? 1 2 3 4. तो a इज द इमेज ऑफ a. किसकी इमेज है? 1 की इमेज है. b किसकी इमेज है? 2 की एंड 3 की इमेज है. c किसकी इमेज है? c 4 की इमेज है. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज इमेज. तो सेट b के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लुक एट द डेफिनेशन फर्दर. इमेज आपको समझ में आ गया. a is called as the pre-image of b under f. Very important line. So the new word here used is pre-image. एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, pre-image. So let me explain this. What is this pre-image? So ये pre-image क्या होता है? Pre-image is the set a के एलिमेंट को pre-image बोलते हैं, और set b के एलिमेंट को image बोलते हैं. तो pre-image क्या होगी? 1 2 3 4 is the pre-image. इनको pre-image बोलते हैं. सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज. इज द प्री इमेज, 2 इज द प्री इमेज, 3 इज द प्री इमेज, एंड 4 इज द प्री इमेज.
किसकी प्री इमेज? सेट बी के एलिमेंट की, राइट। कैसे? देखिए 1 किसकी प्री इमेज है? 1 की इमेज क्या है? ए, ठीक है। ए किससे रिलेट करता है? 1 से। पहले, प्री मतलब पहले। जैसे कि आप ये देखते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हम लोग एक सिम लेते हैं, एक सिम होता है प्रीपेड, प्रीपेड में हम लोग पहले रिचार्ज कराना होता है, ठीक है। एक होता है पोस्ट पेड, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो बाद में पेड कर देते हैं हम, 1 महीना यूज किया फिर पे कर दिया। और प्री का मतलब पहले, पहले पेमेंट किया, रिचार्ज किया और फिर उसको 1 मंथ हमने यूज किया। तो यहाँ पे प्री, प्री का मतलब है पहले। जैसे ए 1 से ए रिलेट है, तो ए से पहले किससे? सेट ए के में, पहले सेट ए में क्या था? 1 था, तो 1 किसकी प्री इमेज हो गई? 1 को बोलेंगे 1 प्री इमेज है किसकी? ए की। 2 किसकी प्री इमेज है? यहाँ पे 2 प्री इमेज है बी की। 3 किसकी प्री इमेज है? 3 प्री इमेज है बी की, तो बी की प्री इमेज है 3। और सी है प्री इमेज, 4 है प्री इमेज किसकी? सी की। तो सेट, अब आप एक यहाँ पे दैट कंक्लूजन इज दैट, ये देखिए, दिस इज द कंक्लूजन, इमेज एंड प्री इमेज। सो वी हैव यूज्ड द 2 वर्ड्स हियर, यहाँ पे 2 वर्ड हमने यूज किए हैं, इमेज और प्री इमेज। तो इमेज हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, इमेज वर्ड, रिलेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। आई होप दिस कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो इमेज का मतलब होता है सेट बी के एलिमेंट, ठीक है, और प्री इमेज का मतलब होता है सेट ए के एलिमेंट। तो सेट बी के एलिमेंट को बोलते हैं इमेज, जैसे ए इमेज है बी की, और सेट ए के एलिमेंट को बोलेंगे प्री इमेज, पहले वाली, राइट। इमेज बन गई, इमेज से बनने से पहले, जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो 1 की इमेज क्या बन गई? ए बन गई 1 की इमेज, ठीक है। पहले क्या था? पहले 1 था, तो 1 को बोलेंगे प्री इमेज किसकी? ए की। और ए को बोलेंगे इमेज किसकी? 1 की, राइट। I hope this thing is little bit clear to you, and when we do some questions based on this, then it will be more clear to you. Now let's move forward in this chapter. Look at this line here, written here. The function f from a to b is denoted by f semicolon a tends to b. So ये एक बेसिक सी चीज यहाँ पे बताई गई है। फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, अगर फंक्शन लिखते हैं, f का मतलब फंक्शन है, ये सेमीकोलन लगाते हैं, a tends to b, तो ये फंक्शन है। इसको मैं अगर एरो डायग्राम से आपको समझाऊं, ऐसे बना लिया, एक सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर आपको कहना क्या चाहता है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 3 4, तो 1 का रिलेशन है 4 से, 3 से, 2 का है 4 से, तो ये फंक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए से बी का ये एक फंक्शन बन रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, लाइक दिस, एफ ए टेंड्स टू बी, मीन्स ए से एरो जाएगा बी की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं ऐसे, एफ, वी कैन राइट लाइक दिस, एफ सेमीकोलन बी टेंड्स टू ए। सो बी टेंड्स टू ए का मतलब क्या हुआ? पहले बी लिखेंगे हम लोग और फिर ए लिखेंगे। कैसे? इसको एरो डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेट बी होगा और यहाँ पे सेट ए होगा। तो ऑर्डर पेयर जब हम लोग बनाएंगे, इसको देखो फंक्शन को लिखेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में, इस वाले को, तो 1,3 एंड 2,4। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर में, जो इस पेयर में जो पहले जो एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए पहले लिखा है और बी बाद में। इसमें पहले जो ऑर्डर पेयर अभी बना के देखते हैं, इसका पहले एक एग्जांपल लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया 3 4 और यहाँ पे लिख दिया 1 2, 3 का 1 से और 4 का 2 से। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इफ आई राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म, इस फंक्शन को, तो फंक्शन आएगा 3,1 एंड 4,2, ठीक है, 3,1 4,2। तो इसमें जब आप देखेंगे बी पहले था, ए बाद में था, बी एरो ए, सो यहाँ पे बी के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले होंगे और ए के एलिमेंट यहाँ पे बाद में होंगे। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फंक्शन, right? So I hope this thing is clear to you. Now let's move forward. Look at this. Let us try to understand what is function with the help of some example, and which is not a function, right? A relation is a function क्या होता है? Function is a type of relation, right? एक relation का type होता है। तो relations के various type होते हैं, एक particular specific type को हम लोग function बोलते हैं, right? अब किस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग ऑलरेडी इन द डेफिनेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, देन इट विल बी
more clear to you. Look at this example here. It is set P and it is set Q, right? So A is having the image Ali. तो A की इमेज क्या है? Ali है. So and B की इमेज क्या है? Bhanu and Binoy is the image of B. And what is the image of C? The image of C is Chandra and image of A is Ali, right? अब इसमें आप ये देखिए, the definition of the function is if every element of set A is having only one and one image, एक ही इमेज होनी चाहिए. लेकिन आप यहाँ पे देखिए सेट बी की कितनी इमेज बन रही है? भानु भी सेट बी की इमेज है और बिनोय भी सेट बी की इमेज है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट से कभी भी दो एरो नहीं जाने चाहिए. अगर दो एरो जा रहे हैं सो देन इट इज नॉट अ फंक्शन. इज इट अ फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन. सो इस एग्जांपल से हमने देखा ये फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, राइट? सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. लुक एट दिस एग्जांपल हियर. इस एग्जांपल में देखिए, इसमें रीजन भी लिख देता हूं. इसमें रीजन क्या था ये फंक्शन ना होने का? द रीजन इज, व्हाट इज द रीजन इन दिस केस? द रीजन इज B is having two images. B की दो इमेज बन रही हैं. So that's why it is not a function. B is having two images. Example कौन कौन सी बन रही हैं? One is Bhanu and second one is Binoy, right? Now let us move to the next example. Look at this example here. Suppose ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है? ये एक रिलेशन है. अब हम इस रिलेशन को चेक करना है कि यह क्या रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है. लुक एट दिस. फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है. देखो, सेट 1 की कितनी इमेज बन रही है? एक ही बन रही है जो 2 है. सेट 2 से एलिमेंट 2 से भी एक ही एरो जा रहा है. एलिमेंट 3 से भी एक एरो जा रहा है. एलिमेंट 4 से भी एक एरो जा रहा है. एलिमेंट 5 से भी एक एरो जा रहा है. सो इन दिस एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैविंग ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी. तो केवल एक ही इमेज है सेट बी के अंदर. तो इज इट फंक्शन और नॉट? यस और नो? Yes, sir, it is a function. Okay, yes, it is a function, but it's not a function. Why it's not a function? So let me explain this to you. It look like a function, but it is not a function. If you look at this element number 6, क्या एलिमेंट 6 की कोई इमेज बन रही है? एलिमेंट 6 की कोई भी इमेज नहीं बन रही है. सो द डेफिनेशन इज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक और एक इमेज होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे 5 एलिमेंट की तो एक और एक इमेज है. सो एलिमेंट 6 डू नॉट हैव एनी इमेज. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. तो लग रहा था कि हमें फंक्शन है, बट इट्स नॉट फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है, राइट? व्हाई? द रीजन इज एलिमेंट 6. सो वी कैन राइट लाइक दैट. 6 डू नॉट हैव एनी इमेज. 6 की कोई भी इमेज नहीं है. 6 डू नॉट हैव इमेज. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. सो डेफिनेशन क्या कहती है हमें? डेफिनेशन कहती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए having some image in set B. set B में कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए. तो इमेज प्री इमेज दैट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट? तो यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी ने इसको नोट फंक्शन बनाया है. तो अगर यहाँ पे होता है एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज हैविंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ से हैविंग सम इमेज इन सेट बी. सम इमेज नहीं, हैविंग सम की जगह ओनली वन एंड वन. ओनली वन एंड वन. सम नहीं लिखेंगे, ओनली वन एंड वन. केवल एक और एक इमेज होनी चाहिए. तो 1 की भी एक इमेज थी, 2 की भी एक इमेज थी, 3 की भी एक इमेज थी, 4 की भी एक इमेज थी, 5 की भी एक इमेज थी. अगर 6 की भी एक इमेज होती तो ये फंक्शन होता. तो अगर कोई एलिमेंट इंडिविजुअल रह भी गया है वहां पे तो उस केस में भी वो फंक्शन नहीं होगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. लुक एट दिस एग्जांपल हियर. दिस इज एनी सेट P, दिस इज Q. अब देखो 9 से कितने एरो जा रहे हैं? 2 एरो जा रहे हैं. तो 9 की कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई. 4 से कितने एरो जा रहे हैं? 2 एरो जा रहे हैं. तो 4 की कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई. एक 2 हो गई और एक -2. 5 से कितने एरो जा रहे हैं? 2 एरो जा रहे हैं. तो जितने एरो जाते हैं उतनी इमेज बनती है. तो 25 की इमेज अगर आप देखेंगे द इमेज ऑफ 25 इज 5 एंड -5. इज इट अ फंक्शन? No. व्हाई? So because every element has two relations. Every element having
2 images, right? Yes, absolutely right. नोट रिलेशन इमेजेस, तो 9 की 2 इमेज बन रही हैं, 4 की 2 इमेज बन रही हैं, 25 की 2 इमेज बन रही हैं। बननी कितनी चाहिए फंक्शन होने के लिए? एक ही इमेज होनी चाहिए केवल। सो यस, इट्स राइट। नो, इट्स नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इज इट रिलेशन? Yes, sir. यस, इट्स रिलेशन। रिलेशन तो ये है बट फंक्शन नहीं है। यस, इट इज रिलेशन। तो ये एक रिलेशन है और ये फंक्शन नहीं है, राइट? लुक एट दिस नेक्स्ट एग्जांपल हियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब नाउ आई होप आफ्टर डूइंग दिस सेवरल एग्जांपल्स इट इज लिटिल बिट क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज नॉट। लुक एट दिस 5 की कितनी इमेज है? 3। 6 का एक ही एरो जा रहा है, इमेज ऑफ 6 इज 4। 7 की इमेज क्या है? 5, राइट? 7 की इमेज 5 है। सो इज इट फंक्शन? इज इट फंक्शन और नॉट? Yes, sir. Yes, it is a function. Reason? Yes, sir, because every element in set P having only one set. Okay, you are saying right, but reverse. इसमें yes, it is a function. ये फंक्शन है। आप बोल रहे हैं every element of set B, ये set Q के हर एक एलिमेंट की इमेज है, उसको इमेज नहीं बोलते, उसको रिवर्स को बोलते हैं प्री इमेज, राइट? इफ यू से लाइक दिस, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी के हर एक एलिमेंट की एक और एक ही इमेज है, सो देन इट इज अ फंक्शन। सो दैट इज अ रीजन, राइट? सो प्री इमेज मैंने बताया था आपको, इमेज और प्री इमेज एक बार और बता देता हूं, व्हाट इज इमेज एंड प्री इमेज। सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं इमेज। तो जैसे यहां पे बोलेंगे 3, ये 3 है, 3 इज द इमेज ऑफ 5, राइट? एंड प्री इमेज होता है सेट ए के एलिमेंट। देखो 5 है तो 5 को बोलेंगे 5 इज द प्री इमेज, प्री मतलब पहले वाली, 5 इज द प्री इमेज ऑफ 3, इट्स अ प्री इमेज ऑफ 3। आई होप दिस इमेज एंड प्री इमेज इज क्लियर टू यू नाउ। तो ऐसे बोलेंगे 4 इज द इमेज ऑफ, 4 किसकी इमेज है? 4 इज द इमेज ऑफ 6। ऐसे बोलेंगे 5, ये 5 इज द इमेज ऑफ 7। ऐसी देखो प्री इमेज, ये 6 किसकी प्री इमेज है? 6 मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट, 6 इज द प्री इमेज ऑफ 4 एंड 7 इज द प्री इमेज ऑफ 5। तो 7 5 की प्री इमेज। आई होप दिस प्री इमेज, फंक्शन, relation, all that things are little bit more clear to you. Now let's move forward. Look at this definition 6 here. A function which has either R or one of its subsets as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called a real function. Okay. So in this definition they want to explain about the real valued function. Real valued function क्या होता है वो explain करना चाह रहे हैं, ठीक है? एक function which has either R or one of its subset as its range is called real valued function. Further, if its domain is also R or either a subset of R, it is called real valued function. Let me explain this to you with the help of example what they want to say in these lines. So real valued function क्या होता है? real value से समझ में आता है मैं रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ with the help of arrow diagram, then it is clear to you what they want to say in this definition of a real valued function. Suppose ये सेट A है, ये सेट B है, राइट? सेट A के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डोमेन, राइट? और जो सेट B के अंदर जो एलिमेंट होते हैं दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रेंज, which are in relation, जो रिलेशन में होंगे that is called as domain and range, right? So वो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे if अगर आप डेफिनेशन यहाँ से देखें, if its domain is also either R, तो डोमेन अगर यहाँ पे रियल नंबर है, इसके अंदर अगर रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है? सारे रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर का सबसेट, कोई जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, राइट? If its domain is also either R or a subset of R, then it is called real function. तो उसको real function बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया था ना, function which has either R or one of set is its range is R. तो रेंज में भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी रियल नंबर
होना चाहिए। तो अगर रेंज भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, सो देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज रियल फंक्शन, राइट। अब ये नॉन रियल कैसे होगा? नॉन रियल देखो, अगर यहाँ पे रेंज में रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, रूट -1 आ गया, रूट -2 आ गया, लाइक दिस। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल फॉर नॉन रियल फंक्शन। एक नॉन रियल फंक्शन का एग्जांपल अगर आपको दूं तो fx मैंने लिखा, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x में भी यानी रियल नंबर, ठीक है। जब ये नेगेटिव में होगा, तो जब ये नेगेटिव में होगी x की वैल्यू, तो इट बिकम रूट -1। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन हो जाएगा रूट -1, रूट -2। तो ये कैसे नंबर होते हैं? दीज नंबर्स आर नॉन रियल नंबर। So this type of function is called non-real function, right? I hope the real function and non-real functions are little bit clear to you all. Sir, please can you explain it again? Okay. Let me explain this with the help of the another example, then it will be clear to you. Suppose एक example लेते हैं, एक function लेता हूं मैं. Suppose function है fx is equal to x plus 3, ठीक है। एक ये फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 3। ओके, लेट मी ड्रॉ द एरो डायग्राम हियर। सो एरो डायग्राम बनाने के लिए सपोज ये x की वैल्यू इसमें लिखी हुई है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू fx रिटर्न हियर इन दिस, ठीक है। अगर मैं x के यहाँ पे रियल नंबर्स लेता हूँ, x के अंदर इफ आई टेक रियल नंबर्स, x कंटेन ऑल द रियल नंबर्स, तो x के अंदर रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम नॉट राइटिंग इन डेसिमल फॉर्म, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो रियल नंबर्स हैं। सो इसके अंदर सेट ए के अंदर रियल नंबर्स हैं, राइट। सेट ए के अंदर रियल नंबर्स हैं। नाउ लुक एट दिस fx क्या आएगा? अगर आप यहां से देखेंगे fx है x प्लस 3, ठीक है। तो 0 है तो ये आएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, राइट। अगर x को 0 लेंगे तो fx कितना आएगा? 3। तो 0 का रिलेशन होगा 3 के साथ। अगर 1 लेंगे तो आएगा 4, ठीक है, 3 ऐड हो जाता है। 2 लेंगे तो आएगा 5, 3 लेंगे तो आएगा 6, राइट। और अगर -1 लेंगे तो आएगा -1, 3 - 1 इज 2, राइट। और अगर -2 लेंगे तो 1 के इक्वल, -3 लेंगे तो 0। if I take -4, then -4 it comes out to be -1. So look at this, for each and every real value of x, अगर x रियल वैल्यू को बिलोंग करता है, x अगर रियल नंबर है, so fx must also be the real number, fx भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। so if x is also a real number, fx is also a real number, that type of function is called as real valued function. so जिनकी वैल्यू हमेशा रियल आती है, so that is called as real valued function. और अगर नॉट रियल आती है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था यहाँ पे, तो ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन नॉट रियल फंक्शन था, क्योंकि इसमें नॉन रियल नंबर्स आ रहे थे। नॉन रियल नंबर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर 5, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन रियल नंबर्स, एंड इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट दिस नॉन रियल नंबर्स in chapter 5. The name of that chapter 5 is complex number. So non-real numbers are also called as complex number or imaginary numbers, right? So now let's move forward in this chapter.